Once again, welcome back to our channel, David Wawa Commerce, with a new topic. And remember, the burning topic of 11th accounts, that is accounting assumptions. Right? To understand the accounting, it is rightly said that some fundamental assumptions are there. We have to follow these assumptions. Then only we can understand the accounts, and the users of the account can also get good idea. So for that reason, today our topic is this fundamental accounting assumptions, right? So there are three fundamental accounting assumptions as per the rule formulated by the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. So they have made three assumptions. First is your going concern assumptions. So one by one we'll go. What is going concern assumptions? Going concern assumption. Going concern assumption. This is known as fundamental accounting assumptions, basic accounting assumption. First one is the going concern assumption. Going concern assumption states that the business will continue for an indefinite period of time. That means क्या है, जब भी कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है, उसके छोटे दिमाग में कहीं पे भी, उसके दिलो दिमाग में कहीं पे भी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा 1 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद. Nobody can say this. Once the business started, एक बार बिजनेस शुरू हो गया तो वो कंटिन्यू करेगा indefinite period of time के लिए. That means business will continue, business will continue for an indefinite period of time, यही मानना है आपको. अगर आपको अकाउंटिंग समझना है, जिस इंसान ने बिजनेस शुरू किया है वो इस बिजनेस को आगे लेके जाएगा. कब तक लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, वी डोंट नो. इसलिए तो आप देखेंगे हमारे इंडिया में जो बिजनेस एक बार जो खानदान बिजनेस शुरू कर दिया है, उसका दादा परदादा सब ऐसे बिजनेस में रहते हैं. तो कंटिन्यूटी रहता है. वंस द बिजनेस स्टार्टेड मीन्स it will continue for an indefinite period of time. So that's the point you have to remember here. Once the business has started means it will continue for an indefinite period of time, and you have to, आपको यही याद रखना है कि बिजनेस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का पहला एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन. इसके बदौलत हम बोलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, नियर फ्यूचर में कभी बंद होने वाला नहीं है. राइट? तो चलते हैं सेकंड एजम्पशन की तरफ. सो द नेक्स्ट assumption is that consistency assumption. Now this assumption states that once the business has adopted the practice and the method of accounting, then that has to be followed consistently throughout the life. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो एक बार पॉलिसी फॉलो कर दिया है, मेथड फॉलो कर दिया है, राइट, तो पूरा लाइफ लॉन्ग ये करेंगे. अगर लॉ चेंज हुआ है तो उसी हिसाब से हमें भी फॉलो करना पड़ेगा. सो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिएगा जब कोई मेथड वगैरह फॉलो करते तो अकाउंटिंग में. अब क्यों, वाई? बिकॉज कंसिस्टेंसी अलाउ करता है कंपेरेबिलिटी के लिए. अगर ठीक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, हम कंपैरिजन जब करेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपैरिजन, इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, इंटरफॉर्म कंपैरिजन. इंट्राफॉर्म कंपैरिजन मीन्स आपका बिजनेस का पिछले साल के साथ इस साल का आउटपुट के साथ, प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन होगा, डेटा के साथ कंपैरिजन होगा, राइट. नहीं तो इंटरफॉर्म कंपैरिजन, आपका बिजनेस का कंपैरिजन दूसरे बिजनेस के साथ होगा. तो ये सब चीज़ कंपैरिजन करने में अगर हम कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेंगे तो कंपेरेबिलिटी ढंग से नहीं हो पाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज राइटली सेड दैट वंस the method and practice adopted means you have to follow consistently, right. ये जो consistency actually क्या करता है, पर्सनल बायस जो है वो
एलिमिनेट कर देता है प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए। सो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा मेथड एंड प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली, क्योंकि यही बोलता है हमारा जो 3 अजम्पशंस है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस और एक एक्रूअल अजम्पशंस, इस 3 को बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सो थर्ड वन अभी हम डिस्कशन करेंगे। So the third fundamental assumptions of accounting is that accrual assumptions. What is this accrual assumptions? Accrual assumptions states that the transactions are recorded in the books of account on the basis of due, not on the basis of received or paid. That means revenue and expenses are entered in the books of account when they become due, not when they are paid or received, right? So that's the point here. So ये जो accrual assumption है हमें कंसिडर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस को जैसे हमने एंटर्ड इनटू आपका असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम, जैसे ही ट्रांजैक्शन में हमने एंटर इनटू कर गया तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे आप रिसीव किए हो या पेड किए हो, डजेंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? व्हेन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू दैट मीन्स बिकम ड्यू, दैट्स ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, right? So this is all about fundamental accounting assumptions. You remember 3 assumptions everybody has to follow, that is going concern assumption, consistency assumptions, accrual assumptions। और ये accrual assumptions के चलते आपका आ जाता है prepaid expenses, outstanding expenses, income received in advance, accrued income। ये सब चीज़ को रिकॉर्ड करते वक्त हमें कंसिडर करना है, तब जाके ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट और लॉस, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स पता चलेगा बिजनेस का। अगर आप ढंग से इसे मेंटेन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गेट द क्रिस्टल क्लियर पिक्चर ऑफ योर और द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो दैट्स व्हाई इट इज राइटली सेड दैट एंड इट हैज गिवन ऑर्डर दैट कि दीज 3 फंडामेंटल assumptions every business organization should follow। Thank you very much for watching। like our video, share our video, subscribe our channel। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।